Hey everyone, I hope you guys are doing great. So the guest for today's podcast is Simran Chaurasia. She is currently pursuing her PhD as well as working as an assistant professor in a reputed college. Recently she has been to France to present her paper in a French symposium. Other than this, she has also filed many patents as well as published many books. So without further ado, let us hear it from her. And welcome guys to the Savik Show. हेलो हाय सिमरन दी, हाउ आर यू, कैसे हो आप? Hello, Souvik. I'm absolutely fine. ग्रेट ग्रेट टू गुड टू हियर And दैट. एंड और कुछ बताना है आपको? लाइक आई एम सो एक्साइटेड. सो गाइज, लाइक आई जस्ट गिव अ ब्रीफ अबाउट हर. सो शी वॉज माई सीनियर, ओके, एंड आई ऑलवेज फाउंड हर इन द लैब्स ओनली. ठीक है, जब भी जाओ वेर इज सिमरन, सिमरन इज इन द लैब्स, सो डूइंग हर प्रोजेक्ट वर्क एंड रिसर्च वर्क. सो आई थिंक आज का पॉडकास्ट काफ़ी ज़्यादा एक्साइटिंग होने वाला है. तो लेट अस सी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स सिमरन दी फॉर गिविंग some time to us, or better to say for finding some time for us. I know you are very busy and your schedule is very hectic, but still I am very thankful that you have, like, you know, like you have said yes for this podcast, and I think it will really help the audience a lot, because I think you have achieved a lot in this very, you know, short span of time. So I am looking forward to it. I think you will like help many children over here whosoever is pursuing pharmacy, and they will be, you know, you will be guiding them to the right direction. I do believe that. So yeah, Simrandi, over to you. What is your thought process into this, all this pharmacy, and how it all started? Over to you. thank you, Souvik, for giving me this opportunity to join your podcast. And really, I was very, very excited. But due to my hectic schedule, it was very tough for me to give you some time. But overall, I could say, first of all, I would like to talk about you. Okay. As before, I was not knowing much about you, but through Saurabh, we came together. Yeah, yeah. But as much as I know, and I have seen you also growing a lot, and you are also an inspiration for all the pharmacy graduates Thank you here. so much. And now let's begin with my journey. Yeah, Uh, absolutely. exactly when I was in class 6th, that time I decided that I'll be working on medicines. It was my aim to work on medicines. Wasn't it too So it was early, not I Simrandi? wanted. Like, wasn't it too Yeah, early? it was very Okay. early. Okay. Okay. It was like okay, I wanted to work on medicines, but I did not wanted to go for MBBS. My father wanted me that I should be a doctor, but to be very true, I don't wanted to be an MBBS because I didn't like to dissections and all that, and whatever I have explored, Okay. I wanted to be something a person who can develop formulations, and means to say I wanted to know the deep about medicines, how it is whenever Okay. we have a capsule or a tablet or any kind of formulation. Mm-hmm. That time I thought how we make it, how it is that Mm. whatever a doctor is doing, he is Mm. just giving the medicines whenever means to say those 6 years, like my father, even when I did my 10th, he said that you can go for engineering, that is also a best option. But truly telling, I never liked maths. Okay. I Okay. never liked maths, and Okay. it was like I just wanted to skip maths somehow. How I did my 10th with maths, I only know how I cleared the exam. Okay. So then later, after 12th, I decided to go for. I have opted for PMTs also. I have applied. I have given those exams, but unfortunately, I was not successful because it was clearly my thought process that I don't want to go with MBBS. But Okay. still, for my parents, Okay. I tried it. Okay. 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 Then later, I got to know about BPharm, and even I was opting for biotechnology also because Okay. that was also a very fascinating field. But Okay. that was my father's option. If you don't want to Simranji, go just for I would like to, you know, MBBS, you interrupt you can in go between. with. सो जस्ट लाइक मेरे मन में बहुत सारे सवाल है, तो आप क्या चाहते हो? लाइक मैं आपको इंटरप्ट करके Okay, सवाल okay. पूछ लूँ कि आप पूरा कंप्लीट करोगे, फिर मैं पूछूंगा, बिकॉज मुझसे रहा नहीं जा रहा. सो बहुत सारे सवाल No, है. no, you can, you can, ओके. you can interrupt. Okay. You can interrupt, no issues. Okay. It will be a wonderful conversation when you will be interrupting in between. बिल्कुल Yeah. बिल्कुल. देन विथ ऑल योर परमिशन, फर्स्ट क्वेश्चन जो विच इज कमिंग टू माई माइंड राइट नाउ. देखो क्या होता है, लाइक आई विल वेरी ऑनेस्ट Yeah, ओके विथ माई exactly, वर्ड्स, exactly. कि क्या होता है जो एक क्लास 5 के जब बच्चे को आप पूछते हो ना, तो उनको रियलिटी पता नहीं होता, राइट? अगर आप मेरे को क्लास 5th में पूछ लेते तो आई वुड हैव टोल्ड यू दैट मुझे एस्ट्रोनॉट बनना है, राइट?
मतलब बहुत बड़े बड़े ख्वाब Hmm. होते थे. बट तो लाइक बट यू आर लाइक जो आपने सोचा था उस टाइम पे, द थिंग दैट द प्रोफेशन यू ड्रीम्ड अबाउट, और आज आप वो, राइट, यू हैव रीच दैट. सो हाउ डिड यू फील Yeah, राइट नाउ exactly, स्टैंडिंग एट exactly. 2022? I'm यस. there. तो आपको अभी कैसा, लाइक हाउ डू यू फील अबाउट दैट? It's like I would first of all like to say my parents that they always supported me in this. My father was not happy with this decision, but still he said that okay, if you want to go, you can go with it. But Okay. now wherever I'm standing, it's all because of my parents and their support. And it's really an amazing feeling that if pharma, whichever field I thought it's very small. We think that pharma is very small field, but Absolutely. now at this stage, I could say pharma is unending, unending. It's means to say whatever you are exploring day by day, we are learning a lot. So it's a great thing, and I feel that whatever I chose, that is the best thing which I have chosen. Yeah, and you are living your dream life also, right? Yeah, exactly. It is a dream come true. It's a dream come true. मतलब इससे With अच्छा the और things जिंदगी. which I never imagined, also still I have. ओके, इससे अच्छा और जिंदगी में क्या ही होना चाहिए, लाइक राइट. मतलब इससे अच्छा और क्या ही होगा जिंदगी में. सो आई थिंक या गुड गुड. सो आई वुड लाइक टू Yeah. कॉन्ग्रेचुलेट यू ऑन दिस नोट. सो ओके सिमरन, लाइक देन हाउ बी फार्म हैपेंड, बिकॉज यू आर Thank you so much. डिटरमिन दैट आप बी फार्म ही करना है अपने, राइट. यू डोंट वांट टू गो टू एनी अदर Yeah. कोर्स. एंड हाउ डिड दैट हैपन, एंड हाउ वाज दोस 4 years ऑफ बी फार्म, हाउ वेर दोस 4 years of बी फार्म? या. Uh, my BPharm journey started in Lovely Professional University. I did my masters and bachelors from LPU, and या. you are also from Yes, there yes, itself, yes, so yes. you know what the life Yeah, is that lovely. absolutely, And absolutely. I can say those 6 years were the golden period. And whatever we are, actually, when we go from 12th, after doing 12th, and it was a very wonderful experience to be the part of Lovely, because I was from Varanasi, UP, and Punjab was a new state where I thought maybe we will be having a language problem. But all I could say that I'm really very, very thankful to Lovely and the people there, that they helped me to know what I have, what I have in me. A girl who, the person who know, means to say when I was still class 12, those people who are knowing, they know me that I won't speak much. If I met anyone, I won't speak. But now it's entirely a different journey, So because introvert if to I'm extrovert. meeting no one, yeah, exactly. Okay. So earlier I used to have a problem of, means to say, I was in a fear to talk to anyone. Even I had a lot of fear with stage. I used to participate in the events, but we can say like I wanted to participate, but it was like always very shy, or I don't want to speak in front of others. I did lot of creative work. I was good in everything I wanted to do, but whenever it was to speak in front of anyone, it was like I was not able to express my things, what I wanted. But now I can say I'm in this profession. Means to say, when I entered BPharm, then there were our professors and teachers. They guided me a lot. They helped me a lot. Even I could say my juniors, some of the juniors, they also helped me. My seniors, like Sonali Didi Okay. and Saurabh. You were also there, and I remember one of the competitions were there where you were boosting me. No, Dee, you can do it. I still Was it? remember those Okay, days. okay. I think it was like, yeah, it was like youth vibe. Youth Okay, vibe. We were okay. we were in a debate competition. So that time you both were standing beside me and were saying, no, you can do it. So it was, I can say, overall this journey, each and every day I learned so much from everyone. And one thing I could say, that whenever we come out from home, like when we are with our parents, it's like we are in a shell. We are there. They are always protecting us. They are guiding us. So that is a very great experience. But when a child gets out from his home, from that comfort zone, then he realizes what he can do. Yes, absolutely. The Even, journey is all about. please. Complete. Yeah. I can't control my That's excitement. what. You know? Please. Please. Okay. Yeah. No, we can say that whenever you are coming out from your comfort zone, there are so many things which you will be coming across, and slowly, it's all what you will develop from those things. Absolutely. You will gain a lot. You will explore a lot. Absolutely. Because I could say when I was there, I was something else. When I came out and when I expressed in front of everyone, so it was something like what was Simran Chaurasia, but now what she is. Yes, It's an entirely a different journey, Absolutely. and I myself can see myself growing.
And even we Absolutely. can say that these experiences, these scratches will help you and others to explore more. Absolutely, So absolutely. all whatever we are. Yes. So similarly, like Yeah. the first recently, I had a talk with Sachin sir and Monica ma'am. Okay, so they were also really excited about this podcast and entire thing. So मतलब कहीं ना कहीं पे I had like like I had told them properly कि आज जो भी मैं हूँ जैसा भी मैं हूँ whatever I am doing today is because of them only and we cannot ignore the fact right LPU ने जो किया Yeah, हमारे लिए exactly. again this is not a paid No, promotion no, no, but no. सच में LPU ने बहुत कुछ चेंज किया हमारे में right the professors the people over there right Yeah, so you agree with exactly. me on 100% right कि एलपीयू ने हमें बहुत कुछ दिया है Yeah, yeah, absolutely, 100%. Because whatever we are, whatever our CV is, it's lovely. Everything it is given by lovely. So only means to say after the means to say those 6 years, they helped us to grow a lot. And whatever we are exploring, we have explored. Whatever we are, wherever we are standing, it's all because of lovely. सो अगर अभी आज कोई बच्चा आके आप पूछते दीदी लाइक आई वांट टू गो फार्मेसी सो डू यू विल यू रिकमेंड लवली फॉर हिम और हर कि हाँ जी जाओ लवली में जाओ कोई Absolutely, absolutely no doubt absolutely, okay okay absolutely, so similarly as you absolutely. mentioned that yeah, you moved from Varanasi to Punjab right for this degree so you must be Yeah, staying in a yeah, hostel right. if I'm not wrong Yeah, okay 6 years it was 6 years hostel. hostel so Yeah. like what according to you is a hostel life ठीक है कैसा था and all that experiences in hostel life and number two I do believe that सबके ज़िंदगी में hostel life आना चाहिए because hostel life also teaches you something which your college or Exactly. university cannot teach you. So what is your take on entire this Cannot this teach you. hostel life? What is your take? What is your call on this? Hostel life, I could still remember that first day when I went inside the hostel and when I met my wardens. That was entirely a different thing, but like a child when he or she leaves the home, it is like so many questions: how I'll stay there, what will be the hostels and everything. Whatever we watch in TV, serials, and everything. Means to say, at that time, I joined a hostel in 2011. Way back, it was a long time, I could say. Yeah. So it was in 2011 when the first day I entered in the hostel. There were so many confusions, but hopefully, when I met my warden and all, they gave a very means to say it was like they said, "You are leaving your parents, but we are there." And I could still say those 6 years, these words were very, very important, and they hold what they said, they hold. Okay. Even Okay. in the night, also, whenever we felt like, and she was like every time, breakfast करके जाना है, अच्छा लंच या डिनर कुछ भी स्किप नहीं करते हैं. फिर मीन्स टू से इट वाज लाइक कि दे वर देयर टू टेक केयर ऑफ यू इवन एट द स्मॉलेस्ट थिंग. अभी कभी ऐसा होता था कि यार घर की थोड़ी याद आ रही है तो वी आर थोड़ा सा इमोशनल हाँ है. हाँ तो बिल्कुल उस बिल्कुल फेज में भी ये होता था कि हाँ उस फेज में भी ऐसा होता था वार्डन मैम क्या हो गया आज फेस इतना ऐसा क्यों है. शी यूज्ड टू हग अस. मतलब उस टाइम पे शी वो हग कर रहे हैं आपको बहुत बेटर फील करा रहे हैं. तो इट वाज लाइक कि आपको एक होम वाली फीलिंग आ रही है. कभी जब वो अटेंडेंस के लिए भी आते थे तो रूम पे बैठ के काफी कुछ हम लोगों को समझाना होता था कि आप गर्ल्स हो ऐसी ऐसी चीजें होती हैं. एंड उनका सबसे बड़ी चीज थी गर्ल हो तो अपने आप को किसी से कम मत समझो. यू कैन डू एवरीथिंग. Okay. आपके पेरेंट्स को आपके ऊपर ट्रस्ट है तो उन्होंने यहाँ पर भेजा है तो एक्सप्लोर. यू आर फॉर्चुनेट एनफ that you have got this opportunity. So I could say that hostel life was wonderful. So- And there about the students and about the people I met, it was like कि कॉलेज में ये होता था कि हम अपने जूनियर सीनियर्स बट डाइवर्सिटी आपको हॉस्टल में मिलती है कि आप अलग अलग कोर्सेज के लोगों से मिलते हो अलग अलग लोगों से एक्सप्लोर करते हो उनके ट्रेडिशन उनके कल्चर उनकी सारी चीजें. तो एक होता है कि एक छोटा सा बॉन्ड वो कहते हैं ना कि आपका पहले एक छोटा सा टेबल होता था मेस का टेबल लेकिन वो धीरे धीरे वो टेबल ऐसा हो गया कि मतलब आज जब वो निकलना था तो लगता था यार पूरा हॉस्टल अपने आप को जानता है और किसी ने आप फार्मा में हो आप ऐसे हो. और फिर धीरे धीरे ये हो गया कि जब हॉस्टल चेंज हुआ तो फिर भी I could say in 2020 I went to Lovely for attending a conference there and I was so surprised when I met people there. They still used to remember me, the same hostel, the same thing, and they were like आप तो वही हो ना जो बनारस से आए थे. तो मीन्स टू ये चीज आपको कि आप वहाँ कुछ छोड़ के गए हो तभी वो आपको अभी भी याद कर रहे हैं. right. So that is a great thing. That's a great thing. So exactly. should we give a shout out to the ma'am the warden ma'am can we mention her name over here Yeah, sure. please do go ahead Uh, what is her name and please give her a big thank you over here if she is watching it then she should know that
you were there या like yeah. एक्चुअली मेरे वार्डन्स तो बहुत सारे थे, Okay. लेकिन ये कहा जाए कि जो मैम थी उनका एक छोटा बच्चा भी था, वो भी हम लोगों के साथ रूम पे आता था, एंड वी यूज्ड टू गिव हिम चॉकलेट्स एंड एवरीथिंग. सो शी वाज सो स्वीट एंड सिंपल, मीन्स टू से दैट लेडी वाज सो स्वीट. पता है उनको, हम लोगों को बहुत बाद में जाके पता चला कि मैम वाज सफरिंग सम काइंड ऑफ डिसऑर्डर और समथिंग, बट शी नेवर टोल्ड दिस. अच्छा. Her pain she used to hide at every time कि whatever she was having. But overall I learned from her that आपकी प्रॉब्लम्स, हमें ये लगता है कि हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, बट जब आप सामने वाले को मिलते हो आपको ये नहीं पता है whatever he or she is giving, like I'm talking to you, maybe in your mind there will be n number of things which will be going inside your head, but मैं आपसे बात कर रही हूँ, आई एम फीलिंग वेरी कंफर्टेबल, आई एम फीलिंग वेरी लाइट, तो आई एम थिंकिंग दैट यू आर एब्सोल्युटली फाइन, बट समवेयर एट द बैक देयर आर सो मेनी स्कार्स, बट वी लीव दैट. सो आई कुड से ओनली दिस कि whenever you are meeting a person, just think about that, whatever, just for those moments, maybe 5 minutes, 10 minutes or an hour, that should be a period whenever that person goes or wherever he goes, he can remember that he met someone after meeting whom he or she could say he or she left some impact on our life. Yes, So yes, that is one of the motto I feel, and I could say that ma'am, really you helped me a lot in this. Okay, okay. And Okay, okay. Two major So, learnings from was it- hostel life. Okay, two major learnings from hostel life. yeah, जो मतलब दो बहुत ज़्यादा लर्निंग जो मतलब आप यू विल कैरी इट फॉर द एंटायर लाइफ, योर एंटायर लाइफ, व्हाट वुड दोस टू बी? फर्स्ट वन वाज दिस ओनली कि Okay. आप जिससे भी मिलो उसको Okay. ऐसा फील कराओ कि मतलब वो 5 मिनट हो चाहे 2 घंटे हो, वो लाइफ टाइम उसको याद रहे, एक इम्पैक्ट छोड़ के जाना. Okay. और दूसरा ये था कि दुनिया में आप बहुत लोगों से मिलते हो और वो छोड़ के चले जाते हैं आप Okay. लोगों को, Okay. लेकिन वही चीज है कि जैसे आगे बढ़ते रहना है इस जर्नी को, मतलब हम इतने ज्यादा अटैच हो जाते हैं ना कि जब हम उनको छोड़ते हैं तो बहुत तकलीफ होती है, लेकिन लाइफ का नाम है कि आगे बढ़ते रहना है और एक ऐसा इम्पैक्ट छोड़ के जाओ कि आज जैसे कह सकते हैं ना कि सौविक अगर यूट्यूब पर है, जैसे हम कहते हैं ना कि मतलब उस टाइम पे मुझे नहीं पता था कि आप कुछ ऐसा स्टार्ट कर रहे हो, लेकिन व्हेन आई गॉट टू नो आई कुड से या आई रिमेम्बर ही वाज माय जूनियर, वी ट्राइड टू कनेक्ट. तो एक वैसा ही इम्पैक्ट हमें छोड़कर जाना है. हमारी फैमिलीज है, हमारा सब कुछ है, बट to the society also we need to give something. Right. Apart from family, it's a responsibility for being an Indian citizen. It's all we could give our country, our people. I think this is one of the very like high things that you have mentioned. So it is very like I like this sentence very much. Like apart from your family and all, you have something you should give to society also. So yes, absolutely, I agree. Exactly. Yes, it yes. is. And how was your M.Pharm, Simrandy? M.Pharm कैसे था? Like why M.Pharm? M.Pharm, those 2 years. हाँ जी. Those two, I will let you know that after B.Pharm, in my batch, I was the only girl who got placed that time, because that time the placement scenario was something else. So I was the one who was placed in Omics International. Achha. Even I joined also. Okay. But what I could say, first passion was pharmacy. Then the second one was teaching. Okay. Second one was teaching. So when I joined Omics, it was a great experience to be in Andhra. That was also a good thing. But within 25 days, it was like, it is something where whatever I have learned, I wanted same to share to others. So it was like, I will be going for my M.Pharm, and you'll be shocked to know that I took admission in MBA Hospital Management in Lovely. And within 10 days, I shifted it to, because I was informed that first you take admission in any of the fields, and then that will be switched to M.Pharm because there were no seats. And I remember this. There was only one single seat for M.Pharm Pharmaceutics, and she was my best friend who used to get that seat. But unfortunately, I got that seat and she missed it. And now also when we talk, she is not knowing that I got admission. अभी पता चल जाएगा through this podcast. Yeah, she'll come to know through this. But I'm still thankful to her that maybe, I don't know, it was in my journey that I had to go with M.Pharm. So I got the seat there. And after joining M.Pharm, when I joined M.Pharm, and the first day when I went to the college, I remember Khurana sir, he said that meet entire M.Pharm. He stood me in front of everyone. I was standing in front of everyone, and I was asked to share my experience about the job and everything, your journey, 4 years journey. I was very surprised because
I was thinking that I'm a simple student, I'm not having that much. But Monica ma'am and Khurana sir, they always supported me a lot. And that time also, when I was asked to deliver everything, I just told whatever I felt there and how it was. And slowly, I could say this M Farm journey, it was very adventurous, I could say, because for mine, it was 3 to 4 times when my project was changed. 3 to 4 times my project changed, supervisors changed, and finally I could remember the day of submission also, when I had to submit a project because of a slight mistake. I was asked to reprint entire thesis, 4 copies, and I remember that day I was all in tears because I thought that maybe this won't be able to get completed. But slowly and slowly things went well, because it was in this MFAM journey. I could say that everything it was like, have trust on yourself, do whatever you are doing. Maybe there will be lots of hurdles, but never lose your patience. Whatever you are, slowly and slowly things will be fine. Maybe you are feeling that you are in a dark room, but a single ray of hope, and if you are trusting on yourself, you will be able to do that. And I still remember when I was asked to reprint my thesis. That time, I was all in tears. Khurana sir was convincing me, it's okay, it will be fine. If you have any financial problem, I will help. I said that it's not a financial problem. Whatever I'm feeling, it's all because of a single mistake, my thesis won't be signed. So that time, Neha ma'am, she hugged me and said, it's okay, things happen, don't worry, everything will be fine. And again I went for the printing, and when my thesis was there and it got signed, so it was like a wonderful feeling that project is still completed. And that project, I could say, that time also I was not feeling the importance of that project, but slowly and slowly, then one day I got a call from Khurana sir that we have applied for your patent and it has got published. And slowly, soon it got an Australian patent, also an Indian patent, Okay. both got granted. So it was like a dream come true, because I never expected that I'll be having a patent. Okay. But And now, all it was so. okay, okay. In the present time, how many patents do you have? So, I think. have two formulation, that is my MFARM project, Okay. and 4 design patents. Those design patents are with my colleagues, where I'm क्या with in करोगे इतने patents MRSPT का? right. Like, what are you planning to do? I mean, 6 patents. My God. 6 पेटेंट आप होल्ड करके बैठे हो. You are holding 6 patents at this time, at this point of time. अच्छा then. Souvik, one more thing I would, Souvik, sorry to interrupt. Please, One please, more please. thing I would say, the two patents which I have, that is the formulation patent, that is entirely my work. Okay. But the 4 design patents which are of MRSPTU with my colleagues there. So I could say whatever they have worked a lot in that. अच्छा. My contribution is there, but they have worked Okay, a lot. okay. So yeah, there is, in my CV it holds 6, but I give importance to those 2 the much, because it was entirely my work. And these 4 patents, that design patents, this is a teamwork. So I am thankful to that team that they gave me this opportunity to be the part of that. And it's like we can say, na, ki 2 things you did from the help, with the help of your teachers and everything, but those 4 are like teamwork, that even in a team you can stay very strong and you can develop and grow. Okay. Absolutely, absolutely. But still, since like, look, if we like collectively, if we speak about, then there are 6 patents. Okay. Let us not go to the root. Let us not go to the root. There we have got 6 patents. Yeah. So like, जैसे कि like when we used to study, when we were in my, I was in my M-Farm, तो like people are, I knew that many people were struggling to get a patent, but हुआ नहीं. I today also I have got 1 patent, but I have not gained something out of it, right? Gained in the sense commercially, I though personally I have gained a lot, but commercially ऐसा मतलब कुछ ज़्यादा हुआ नहीं. So like ऐसे भी बोल रहा था. Even I have also heard many people saying कि जब पेटेंट से कोई पैसा ही नहीं आ रहा है, क्या फ़ायदा? So what would be your call on this? कि कमर्शलाइज होना, I know obviously कमर्शलाइज होगा तो then you will be getting some monetary benefit, but स्टूडेंट के लिए पब्लिश होना, पेटेंट पब्लिश होना is a very big deal, right? So how to deal with this kind of people, and what is your take on this? Actually, patents, publications, book chapters, and all whatever we can say the research field is all about. I could say this: ki people link these things to monetary funds, but being a researcher, I could say this: I never connected anything to money.
For me it was, you do the research, you grow, you do something for the society. It's not always that whenever you are getting a monetary fund, that is only success. People define success when you are getting, you are having lots of money in your pocket. Success is not that. Success is something which you are, each and every day you are working on it, you are getting something out of it. So for me, means to say, when I started my PhD in MRSPTU, many of them people said that no, you should not go for PhD here. You can go abroad. I even got many calls from, and even one of my relative is also in. She's abroad, so she said that you can work there. Pharma is having lots of opportunities outside. But to be very true, I could say I can go and foreign for 2 to 3 days or for a week just to. Means to say explore things, but I don't want that whatever I am, it is for India, it is for India. Okay. I don't want money. I want whatever I'm doing, that is for my place. Okay. Even I'm getting a small amount of money also, or even I'm not getting any monetary fund, but still I want to work for my country, whatever I am. Amen. It's all because of India. It's not like to go abroad and to get money out of that. Everything is not money now. Okay. Maybe I have seen many people. I've seen many people. They are having lots of money in their pocket, but happiness is not there. But I could say whatever it is, wherever I am here, maybe I'm not having that much of monetary. I'm not having a huge amount of money in my bank account. But I could say Yeah. whatever it is, that a simple smile when I can see in my parents' face and my teachers, professors, whosoever, I still get calls from them, and whenever I used to talk, and whenever I used to tell that even a small thing, I used to tell that this has happened. So whatever the expressions they give, that is like, na, I'm getting so much from that. So I don't want money. Whatever I want is, it is whatever you are doing, it should be good for a Absolutely. good cause. So just what I am guessing from this, not guessing, I am understanding. Look, I have taken few podcasts. So if you ask me that, I can proudly say I am bit experienced in this podcast, right? तो like ना what happens, like ऐसे टीचर्स जब पता कर देता ना कौन सा बच्चा पढ़ के आया है and all that stuff, right? The teacher used to know, कि पता चल जाता है उनको कि okay, this student has, like, you know, done the homework or something like that. So when I am talking with you right now, when I am talking with you in this entire podcast, I can see the excitement in you, right? Like पता चल रहा है कि आप अपने काम को लेके कितना ज़्यादा खुश हो, एंड मतलब इससे ज़्यादा खुशी और Yeah, कुछ exactly. चीज़ I'm जिसके very हो ही happy नहीं, with है ना, this. है ना. तो यू आर वेरी कंटेंटेड. अगर मैं बोलूँ नॉर्मली आप बहुत, जो जहाँ पे हो जैसा भी हो, बहुत खुश हो आप, राइट? तो आई थिंक इस खुशी के Yeah, मिलने I'm के बाद happy और with कुछ कोई मॉनेटरी वैल्यू इस खुशी को पैरेलल नहीं नहीं कर चाहिए. सकता, राइट? No. Exactly, nothing can be. Absolutely. And how is your profession going on? Other than this PhD, you are also working as an assistant professor, right? If I am not wrong. Yeah. I'm working as an assistant. Yeah, it has been more than 5 years. Its teaching experience is more than 5 years. So Acha. it's been, means to say, when I get connected with my students know me well, and one thing is there that I'm a very strict teacher. You are a very strict Students teacher. have this mentality yeah, that आज I'm a remove very कर दो ये strict mentality. teacher Okay. because देखो, सुन लो, देख लो, बच्चों But- देख लो. Okay, so sorry. it can, Yeah. whatever it is, like whenever I used to enter a class, it is like whatever 1 hour we are getting, it is like whatever time you have, just listen what your teacher wants to give. It's not only the subjective language, he or she wants you to grow more, something beyond that class. So whatever lectures I deliver, I feel like whatever I'm giving, it's not only what it is given in the book, something beyond. Like when presently I'm taking classes for the first year also. So that when they came for the first time, I asked, what make you to enter in this pharma field? Like there were so many questions in their mind, and slowly, when in the class of 60, I contacted with the students, and slowly they were like same answers, everywhere same answers. Okay. After listening everything, I asked only one thing: are you all of you are going to land in the same place? So they were like, नहीं, मेरे friend ने बोला तो मैंने बोला, तो मैंने वही उनको कहा Okay. कि at least try to change something, think something different. आपके friend ने बोला, that is good, friendship is good, but somewhere आपको अपने मन का भी जानना पड़ेगा. Yes. पेरेंट्स ने बोला, मम्मी ने बोला, पापा ने बोला, वो चीज एक अलग है. लेकिन अगर आप फार्मेसी में आ चुके हो,
चलो धक्के से ही सही, हम्म, धक्के से ही आ गया, लेकिन अब तो ये समझो कि आप हो उस जगह पे। आफ्टर 15 डेज अगेन आई आस्क्ड, कुछ मेंटालिटी में चेंज आया, कुछ आपकी थिंकिंग में वो हुआ, आपने कुछ देखा। अब आपकी यूथ को देखते हो सोशल मीडिया पे इतनी ज्यादा अटैच्ड है, ठीक है, रील्स Right. देखना, स्नैपचैट, पता नहीं क्या क्या चीजें करते हैं। ओके, Absolutely. आई एम नॉट नोइंग आल्सो, मुझे भी ज्यादा पता नहीं। आई एम वेरी बैड मैं एट बस ऑल दिस, प्रमोशन के लिए जाता हूँ, अपना एक प्रमोट करके आ जाता हूँ, बस खत्म। हाँ, तो यही मैं बच्चों को यही कहती हूँ कि देखो, अगर आप चाहे जिस भी कंडीशन में आपने इस प्रोफेशन को ज्वाइन किया है, Right. लेकिन उस प्रोफेशन की लेगेसी को बढ़ाना आपका काम है ना। हम्म, कि आप फार्मा में हो, अगर आप अपने फैमिली में भी जा रहे हो, तो एक प्रेस्क्रिप्शन पर्सन के लिए बहुत नॉर्मल चीज है। तो जब अब आपको पता हो चुका है कि वो प्रेस्क्रिप्शन क्या है, तो एटलीस्ट अपनी फैमिली को बताओ कि व्हाट यू हैव लर्न, इवन दे विल फील प्राउड कि मैंने आपको कुछ अलग में दिया है। राइट। अब हर एक बच्चा 12th तक जाता है, हर एक बच्चा 12th तक जाता है, उसका मोटो यही रहता है कि हाँ यार इतना परसेंटेज गेन करना है, आगे पढ़ेंगे। लेकिन अगर आप फार्मेसी का पार्ट हो, तो आप किसी अलग फील्ड में हो, तो उस फील्ड को थोड़ा सा एलिवेट करो, बिकॉज दुनिया को अभी भी यही पता है कि फार्मेसी मतलब एमआर होता है, लेकिन नहीं, इट इज बियॉन्ड, इट इज बियॉन्ड। तो वही मैं उनको कहती हूँ कि एक्सप्लोर समथिंग, डू समथिंग इन योर फील्ड। आप इस चीज का पार्ट हो तो मेक अदर्स प्राउड दैट रियली यू आर द पार्ट एंड यू कैन डू अ लॉट। तो वो कहते हैं कि मैम, वो मुझे कभी कभी मेरे कुछ स्टूडेंट्स मेरे को ये कहते हैं कि मैम यू, I think you should not take our classes. You should be a motivational speaker, because from your scratches you have learned a lot, and even you inspire us. But it's not inspiring, or I could say whatever it is, whatever in these last 12 years I gained, same I want to Yes. share with others, so that they can learn, they can do whatever they wish. मतलब And सिंपल सा चीजें देखो, सक्सेस, प्लीज 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 सक्सेस, हाँ देखो, सक्सेस ये चीज है कि सक्सेस वो नहीं है कि आपके पास ह्यूज मॉनेटरी अमाउंट हो। सक्सेस वो होनी चाहिए कि आप जहां से आए थे और आज आपके में क्या चेंज आया है, वो एक बहुत बड़ी चीज होती है। दैट इज समथिंग, इट्स ओके, आई नो कि आज की लाइफ में अपनी फैमिलीज की, अपनी हर एक चीज को सेटिस्फाई करने के लिए आपको मॉनेटरी चाहिए होता होगा, लेकिन अगर आप जो डे बाय डे ग्रो करोगे, तो एब्सोल्युटली यू विल हैव इनफ, यू विल हैव इनफ, या एब्सोल्युटली आपके पास इतना इनफ होगा ना कि आप उस चीज में बहुत अच्छे से ग्रो कर सकते हो। मनी भी है, सब कुछ है, तो एक सेल्फ सेटिस्फैक्शन के साथ होगा। और ये जो एक वो होता है ना, आप भीड़ का पार्ट हो, भीड़ का पार्ट तो सभी है, ठीक है, यू आर स्टैंडिंग इन अ क्राउड, बट स्टैंड समवेयर मीन्स टू से समथिंग डिफरेंट। आप उस जगह पे एक अलग से शाइन कर सकते हो, दैट इज अ ग्रेट थिंग ना, कि आप शाइन कर पा रहे हो। राइट राइट राइट। तो आई वांट दैट माय स्टूडेंट्स आल्सो टू डू। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। आई थिंक अगर इतना अच्छा टीचर मोटिवेटर मिलेगा तो बहुत कुछ कर लेंगे बच्चे। आई विश देम ऑल द बेस्ट फ्रॉम माय साइड आल्सो, ऑल द बेस्ट गाइस, यू विल रॉक श्योरली। बस इनकी बातें सुनते रहा करो, ठीक है। सो सिमरन, लाइक वन क्वेश्चन दैट इज कमिंग टू माय माइंड, सिंस मैं बहुत दिनों से स्टूडेंट्स के टच में नहीं हूँ, कोई भी, लाइक आई डू माय कोचिंग, मेरा एक कोचिंग का है, लाइक आई डू माय कोचिंग, उसमें 3-4 बच्चे आते हैं, दे आर मैच्योर इनफ। तो लाइक आई वुड लाइक टू आस्क दैट, एज यू मेंशन दैट यू आल्सो टीच फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स आल्सो, राइट? तो हमारे टाइम के जो स्टूडेंट्स थे, मतलब आपके टाइम पे जो व्हेन यू वर स्टूडेंट्स, ठीक है, उस टाइम पे और आज के वाले स्टूडेंट्स के टाइम पे व्हाट इज द डिफरेंस, व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस? ह्यूज डिफरेंस, राइट? मतलब ह्यूज डिफरेंस, देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस। मैं थोड़ा सा एक चीज शेयर करता हूँ। क्या हुआ था, लाइक जैसे ना, व्हेन आई यूज्ड टू टॉक विद माय ग्रैंड पेरेंट्स आल्सो, मुझे लगता था कि जनरेशन गैप कितना ज़्यादा है, राइट? बट एट द सेम टाइम मैं फील करता था कि मेरे अपने आगे वाले जनरेशन में इतना गैप नहीं होने दूंगा, राइट? मैं बहुत स्मार्ट हूँ, आई विल मैच विद देम। बट जब मैं आज के पॉइंट में खड़ा हूँ, आई नो दैट मैं बच्चों के साथ मैच नहीं कर पाता। ये जनरेशन गैप इज अ ट्रू थिंग, वेरी ट्रू थिंग, आई कैन फील दैट। So that it is true. Yeah. So I like your call. Means to say, देखो, जब हाँ, अभी जब जैसे आप बच्चों से मिलते हो ना, तो प्रेजेंट में बच्चों का ये क्या है ना, कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखो, अपने टाइम में क्या था कि ये गूगल वगैरह इतना ज्यादा डेवलप नहीं था। हमें पता था कि जब हमें टीचर पढ़ाएगा, या जब हमें टीचर पढ़ाएगा, हमें टीचर्स की वर्ड्स की इंपॉर्टेंस थी। आज बच्चों की जो मेंटालिटी है, देयर आर few students are there जिनको अभी भी टीचर्स की बहुत इंपॉर्टेंस होती है। लेकिन जो, अगर मैं एक मैक्सिमम जनता की बात करूं, कि इफ यू आर टॉकिंग अबाउट अ क्लास ऑफ 60, बच्चे क्या होते हैं, एक दूसरे को देखकर चलते हैं। एक तो आजकल ये हो गया है कंपटीशन, शो ऑफ एक इस टाइप का कि
हमें सोशल मीडिया पे इस तरीके से रहना है, एंड एक दूसरी मेंटालिटी ये है कि हमें रिलेशनशिप्स बना के रखने, अ काइंड ऑफ रिलेशनशिप विद व्हिच दे थिंक दैट इज वेरी कूल। देखो, रिलेशंस आप बना के रखो, फ्रेंडशिप आप ऐसी रखो, बट सभी चीज की एक अपनी वैल्यू होती है। बिकॉज अभी आप जिस स्टेज पे हो, बच्चों के अंदर से ये चीज चली गई है। जैसे मैं देखती हूँ हमारे यहाँ पे भी बहुत बच्चे ऐसे हैं जो कि बाहर से भी हैं, मीन्स टू से दे आर फ्रॉम पंजाब आल्सो एंड दे आर फ्रॉम आउटसाइड पंजाब। बट आप ये सोचो कि अगर किसी को, कोई बच्चा अगर बिहार से है या किसी भी इंडिया के XYZ स्टेट से है, तो आपको पता है कि आपके पेरेंट्स ने किस किस तरीके से आपको वहां भेज रहे हैं, ठीक है। आपकी छोटी सी छोटी जरूरतों के लिए भी उन्हें कितना मेहनत करना पड़ता है, Right. अपनी कितनी चीजों को कॉम्प्रोमाइज करके आपको वहां भेज रहे हैं। बट आज की यूथ में क्या है, उस मनी की इंपॉर्टेंस को वो नहीं समझते हैं, और वो डिमांड करते हैं और कि हमें और चाहिए, हमें पैसे चाहिए, मेरे फ्रेंड्स यहाँ घूमने जा रहे हैं। आप सब कुछ करो, लेकिन एक चीज को ये ध्यान में देकर रखो कि जिन पेरेंट्स के ऊपर आप इतना बर्डन डाल रहे हो, क्या सेम चीज आप अपने बच्चे को दे सकते हो? जिस लाइमलाइट में आप रहने की कोशिश कर रहे हो, अगर वही चीज आप इस तरीके से चलो कि जो मैंने देखा है, मैं यही सोचूंगी कि मेरे से बेटर लाइफ मेरे बच्चों की, ऑब्वियसली एवरीथिंग विल बी थिंकिंग द सेम। बट बच्चों के मन में से ये चीज चली जाती है, और वो अपने पेरेंट्स को इस चीज के लिए कर्स करते हैं और इस चीज के लिए बोलते हैं कि ऐसे पेरेंट्स से तो अच्छा नहीं होते, या आप कर ही क्या रहे हो। अ स्टूडेंट, अ चाइल्ड कैन नेवर अंडरस्टैंड व्हाट हिज पेरेंट्स डिड फॉर हिम। आप आज हम चाहे किसी भी पोजीशन पे चले जाएं, हम चाहे कंपनी के CEO बन जाएं या इस मतलब कहीं पे भी पहुंच जाएं, कितना भी ह्यूज अमाउंट हो, बट एक बच्चे को ये चीज समझना चाहिए कि आज अपने आप पैरों पे खड़े भी हो ना, तो वो उन माँ बाप की देन है, जहां से उन्होंने अपनी कितनी चीजों को कट ऑफ करके आपको उस जगह पे रखा है। तो हम ये क्यों भूल जाते हैं कि उन्होंने दिया क्या है? जो उन्होंने दिया है ना, हम उन्हें कभी पे बैक नहीं कर सकते हैं। वी कैन नेवर डू दैट। तो आज के बच्चों से मैं यही रिक्वेस्ट करूंगी, इवन आई आस्क माई स्टूडेंट्स ऑल्सो, वट एवर यू वॉन्ट टू डू, एंजॉय योर लाइफ, बट एंजॉय इट इन अ सेंस दैट जो चीज आपको लगता है कि वो सही है, हर एक चीज की एक लिमिट होती है। एंजॉयमेंट का मतलब ये नहीं होता है कि आप बाहर जा रहे हैं, आप शॉर्ट ड्रेसेस पहन रहे हैं, या आप जो भी कर रहे हो, आप वो चीज रखो ना। आपको अपना कल्चर, आपको अपना प्रोफेशन, आपको हर एक चीज से जुड़े रहना है। एंजॉयमेंट का मतलब वो नहीं है जो आजकल के बच्चे समझते हैं। और मेरे लिए तो सबसे बड़ी चीज यही है कि पहले अपने पेरेंट्स, जिन्होंने तुम्हें वहां पर लाए हैं, चाहे पेरेंट्स हो चाहे टीचर्स हो, जब तक आप उनको वैल्यू नहीं दोगे, उनको इम्पोर्टेंस नहीं, उनको थैंकफुल नहीं फील करोगे ना, तब तक आप चाहे कहीं पे भी पहुंच जाओ। हम देखो, हम लोग जहां पर भी हैं आज उनकी वजह से हैं। आप एक शब्द, ये चीज अगर जैसे मेरे टीचर्स भी अगर इसको देखेंगे तो उनको पता है कि आई कैन प्राउडली से कि वट एवर आई एम बिकॉज ऑफ माई पेरेंट्स एंड माई टीचर्स। तो ये उनके लिए एक वर्ड होगा, लेकिन उनके फेस पे जो एक हैप्पीनेस आती है ना कि हाँ मेरा बच्चा आज भी मुझे याद करता है, तो वो एक बहुत बड़ी चीज होती है। हम जाके उनको गिफ्ट्स, देखो आप गिफ्ट दे सकते हो, गिफ्ट्स देने से वो एक चीज है जो रहेगी फिर चले जाएगी। बट ये वर्ड्स जो होते हैं, जब आप अपने टीचर्स को मिलते हो या तो उनको अच्छे से ग्रीट करते हो या जो भी करते हो, इवन बीइंग अ टीचर, व्हेन आई जॉइन दिस प्रोफेशन एंड आई रिसीव द फर्स्ट ग्रीटिंग मैसेज, आई कुड स्टिल रिमेम्बर दैट हैप्पीनेस कि वो टीचर जब बच्चे आपकी उस 45 मिनट्स के लेक्चर या 1 आवर के लेक्चर को इतनी इंपॉर्टेंस देते हैं कि मैम वेरेवर आई एम स्टैंडिंग। आई रिमेम्बर द फर्स्ट स्टूडेंट ऑफ माई क्लास, जब मैंने 5 साल पहले टीचिंग स्टार्ट किया था। आज वो स्टूडेंट नाइपर से PhD कर रही है, सोनिया कन्नौजिया। शी इज इन नाइपर मोहाली, शी इज डूइंग PhD। और मैं बताऊं, मेरा स्टूडेंट ने पहले मेरे से PhD एनरोल किया, मैं उसकी बात कर रही हूँ। But still, whenever I receive those texts, और मेरे काफी सारे students हैं, those who have went abroad also for studies and due to family and all that. But still, अगर आज उनके messages आते हैं, तो I could feel that being in this 5 years profession, maybe something is there apart from my growing. I have made impact on those students also, and I wish कि those students will also carry the same legacy, whatever I have given them, and whatever I have learned from my teachers, that's what I'm going to give it to my students also, and hope it will be. Absolutely. I think this was a very good lesson for for everyone. Sorry, I don't know why I'm bumbling. For everyone, this must be a good lesson, and I think like जो आपका source है, if you don't value that source, then आप कुछ भी जिंदगी में नहीं कर सकते, right? And this source is basically your parents and your teacher, right? As we are also talking about LPU, कि LPU ने हमें कितना दिया, we are admitting it,
राइट. आई थिंक इसके लिए भी काफ़ी ज़्यादा हिम्मत चाहिए Yeah, होता we है, I राइट. can wait. है ना. सो सिमरन दी, लाइक एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम अगेन द क्वेश्चन दैट इज कमिंग टू माई माइंड, ऐसे जैसे बहुत बार हम सुनते हैं कि हमारे एजुकेशन सिस्टम को चेंज करना चाहिए, बहुत कुछ मैच नहीं होता. इवन इफ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, राइट, जो आज काम मैं कर रहा हूँ, ऑब्वियसली सबका एक रास्ता होता है, राइट. एवरीथिंग हैज़ अ डायरेक्शन. मैंने बी फार्म किया, ए फार्म किया, एंड ओनली देन आई एम एबल टू डू दिस जॉब जो भी आज मैं हूँ, राइट. बट कहीं ना कहीं Yeah, आई exactly. फील कि जो मैंने सीखा था वो कहीं पे लग नहीं रहा, एटलीस्ट फॉर मी, एटलीस्ट इन द कंसल्टिंग फील्ड. तो आपको व्हाट इज़ योर कॉल ऑन दिस कि जो आप लोगों ने, ऑब्वियसली यू आर प्रोफेसर, यू आर असिस्टेंट प्रोफेसर, सो आपने जो पढ़ा दैट इज़ लाइक वो आपको चाहिए अभी एट स्टैंडिंग एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. सो आपको क्या लगता है कि शुड वी इन दिस एंटायर फार्मा एजुकेशन कुछ चेंजेस की ज़रूरत है, या जो सिलेबस है जैसा है सब कुछ सही है? ऑन दिस आई हैव हर्ड अ लॉट. मतलब मैंने बच्चों से भी काफी सुना है कि जो हम पढ़ते हैं वो कहाँ ही यूज करते हैं. जैसे कि एक सिंपल सा एग्जांपल मैं देती हूँ, अपार्ट फ्रॉम फार्मा स्टूडेंट्स ऑल्सो. जैसे कि जब हम मैथ्स में हमने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी थी और बहुत सारी चीजें पढ़ी थी, जो हम कहते हैं ना कि क्या यूज है इन सब चीजों का. Absolutely, absolutely. एक जनरल एग्जांपल, दोज हु आर नॉट फ्रॉम फार्मा आल्सो दे कैन अंडरस्टैंड. तो ऐसी चीजें होती है. अब जैसे फार्मेसी में भी हमने इतने सारे सब्जेक्ट्स पढ़े. आई कैन से अब 4 इयर्स डिग्री में आप इतने सारे सब्जेक्ट्स पढ़ते हो और शायद ही उसको कहीं यूज करते हो. बट बीइंग अ टीचर अगर मैं चीजों की बात करूं कि जो आपका सिलेबाई डेवलप किया गया है, डिजाइन किया गया है, वो कुछ सोच समझ कर ही किया गया है. Right, क्योंकि right. कुछ चीजों की हमें वैल्यू उस टाइम पे नहीं समझ में आती है ना, कि वो ये चीज है. लेकिन वो कॉन्सेप्ट, वो सारी चीजें जो है, आप कहीं ना कहीं उसको इन फ्यूचर यूज करते हो. तो देखो, आप जब एक सिंपल सा एग्जांपल है, जब बच्चा शुरू करता है, होता है ना कि वो जब स्कूल में एडमिशन लेता है तो उसको लाइन भी खींचना नहीं आता है. अगर हम 12th क्लास के बच्चे को बोले कि बेटा लाइन खींच के दिखाओ, तो वो इट विल साउंड फूलिश. बट जब वो कभी शुरू किया था, तभी तो आज वो पूरा फुल सेंटेंस में लिख पा रहा है. राइट, राइट. तो इस चीज के लिए जो करिकुलम है, देयर मे बी सम चेंजेस. आई कैन नॉट से मच, बट इतना कहूंगी कि हाँ, कुछ मॉडिफिकेशंस, थोड़े मॉडिफिकेशंस की जरूरत है. बट जो है अगर बच्चा उस पर भी कॉन्सेंट्रेट करके करे ना. देखो, मेंटालिटी क्या होती है हमारी, कि हमें जो दिया जाता है हम कभी उससे सेटिस्फाइड नहीं होते. वही, मिल गया तो मिट्टी, ना मिले तो सोना. लेकिन जो है अपने पास, अगर हम उसको अप्रिशिएट करके चले, तो आई थिंक वो तो सफिशिएंट है. बट हमारी मेंटालिटी क्या होती है, जो नहीं है उसके लिए रोते रहो, क्रिटिसाइज करते रहो कि यार ये तो है ही नहीं, हम ये कर ही नहीं सकते. लेकिन आपको जो मिल रहा है, those 4 years you have a lot of things to do, lot you have. बट अगर उसी 4 years को फोकस करके अगर आपने एक पॉइंट भी लेकर अगर आगे चले होते ना, तो शायद आप क्रिटिसाइज करना ही भूल जाते. राइट. तो क्रिटिसाइज करना इज इजी, क्रिटिसिज्म इज वेरी इजी. बट इवन अ स्मॉल पॉइंट पे भी आप लेके चलो ना, तो you have a lot to do. Absolutely. अच्छा सिमरन दी, आर यू स्पिरिचुअल, आर यू रिलीजियस? आप, since you have talked a lot about parents and teachers, so I can 100% say that you must be religious. तो like कितना मानते हो भगवान को? Like पूरा every day you do that puja and all? Yeah, I do. Okay. And how do you feel that this being, जैसे अगर if I talk about myself, when I went out from my home, away from my home for that study and for that job, धीरे धीरे ना मैं I became नास्तिक, ठीक है. एंड मुझे लगा कि कुछ नहीं होता ऐसा. देन व्हेन आई एम एजिंग ना, मुझे लग रहा है नहीं, समथिंग इज देयर एंड आई मस्ट. तो आजकल मैं आई कम्प्लीटली, है ना, आई गो टू, ओके, मतलब जो भी है. सो एंड आई डू रियली फील दैट बीइंग रिलीजियस, ऐसे नहीं कि हर टाइम पूजा करते रहो, नो, नॉट लाइक दैट. बट आई थिंक कहीं ना कहीं पे दैट हेल्प्स यू टू स्टे ग्राउंडेड, है ना, और आपको एथिकली, मॉरली भी आपको बूस्ट मिलती है. सो आपका ये पूरा रिलीजियस जो कॉन्सेप्ट है, आपका क्या है? एक स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट होता है ना, कि वी बिलीव इन सम सुप्रीम पावर जो कि आपको गाइड कर रहा है. फॉर मी सुप्रीम पावर इज समथिंग दैट कि समथिंग इज गाइडिंग यू, व्हाट इज रॉन्ग, व्हाट इज राइट, एट एवरी स्टेप. व्हेनेवर इट इज सम सिचुएशन अगर ऐसी होती है ना कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि अब मुझे क्या करना चाहिए, तो आई जस्ट क्लोज माय आईज और आई जस्ट सिट अलोन एंड डिसाइड व्हाट आई नीड टू डू. क्या चीज को छोड़ दिया अपने अंदर की, ये इसका जवाब मुझे चाहिए. तो हम अंदर से जो बातें करते हैं, तो देखो, भगवान बाहर नहीं है या भगवान हर एक चीज में है. हम ये कह सकते हैं कि वो हर एक चीज में है, बट हमारे अंदर एक, हम किस चीज को कैसे आइडेंटिफाई कर रहे हैं. अब जैसे रिलीजियस में, अगर इंडियन रिलीजन की बात करें जाए, तो इतने सारे भगवान है ना, सो मेनी गॉड एंड गॉडेस. हम हर लोगों को अलग अलग नाम, हाँ, तो हम हर लोगों को अलग अलग नाम से जानते हैं. तो अपनी एक बिलीव होती है. लेकिन
मेरे लिए वो चीज है कि वो एक सुप्रीम पावर जो हमें सही की तरफ ले जाए, कि क्या सही है क्या गलत है। आप जानते हो जैसे आजकल के जो वर्क कल्चर में आपने देखा है, लोगों की आदत होती है कि अपने आप को राइज करने के लिए दूसरों को नीचा दिखाते हैं। राइट राइट राइट। होता है कि सक्सेस के लिए लोग सोचते हैं कि हम किसी चलो। को किसी को अगर हार्म भी कर दें कुछ नहीं, हाँ, लेकिन सक्सेस ये नहीं है। ठीक है, आप दूसरे की चीजों को नहीं समझ पा रहे हो या नहीं है, उसको अपना काम करने दो, आप अपना काम करो, आप अपनी जगह पे सही होगे, आप अपने को किसी तरीके से तकलीफ नहीं दोगे ना, किसी दूसरे को अपनी तरफ से कोई तकलीफ नहीं दोगे, तो एब्सोल्युटली यू विल शाइन, यू विल शाइन। ओके। बट आजकल के लोग इस चीज को बिलीव नहीं करते, उनको ये लगता है कि नहीं, दूसरों को डिग्रेड करते रहो तब आप शाइन करोगे। आपकी जो क्वालिटीज है, जो आपको अच्छे से जानते हैं ना, वो आपकी क्वालिटीज को जानेंगे, वो आपकी चीजों को अप्रिशिएट भी करेंगे। और अप्रिसिएशन नहीं है कि कोई ये आगे कहे कि सौभिक यू आर डूइंग अ ग्रेट वर्क। You know, people know you, people know you, you have left some impact on others। आपसे कोई कहे या ना कहे वो जरूरी नहीं है, लेकिन आपको पता है कि आपकी वजह से किसी की लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं, दैट इज अ वंडरफुल थिंग। राइट राइट। नॉट अबाउट एवरीवन सेइंग। देखो, अब आप कोई छोटे बच्चे नहीं हो ना कि अब आपको इन मोटिवेशंस की जरूरत है। आप कर रहे हो, आप ग्रो कर रहे हो, और आपको लोगों से पता भी चल जाएगा कि यू आर ग्रोइंग, you are leaving an impact on the people, you are leaving an impact on others life, that is the greatest thing। and I could say जो भी thinking है, जो भी ये thought process है, वो supreme power जो हमें guide कर रही है, वही हमें इन thinkings के बारे में। और जब हम अपने spiritual books और religious books के बारे में बात करें, तो यही सारी चीजें हैं जो उसमें भी लिखी हुई हैं। बट यही होता है कि with time हमारे लिए वो चीजें वैल्यू होल्ड करती हैं, नहीं करती हैं, ये कभी कभी हम मिसगाइड हो जाते हैं चीजों के साथ। और वो पूजा नहीं है, रिलीजन वो नहीं है कि आप मंदिर में बैठे हुए 2-2 घंटे पूजा कर रहे हो और पूजा वो नहीं है। पूजा वो चीज भी है कि आप भगवान को दिल से याद कर रहे हो और हर एक स्टेप पे उनको थैंक यू बोल रहे हो कि वट एवर आई एम, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ। और जो कि मेरी फैमिली को, मेरे से जो कनेक्टेड है, उनको खुश रखे, बस इतना सा कि मेरी तरफ से किसी और को कोई तकलीफ ना हो। क्योंकि देखो, हम नोइंगली और अननोइंगली हमारी चीजों से लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं, ये चीज तो होता है। बट हमें एक ऐसा चीज लेके चलना है कि हम चीजों को स्मूथ एंड साउंड लेकर चलते रहें और लोगों की लाइफ पे एक इम्पैक्ट छोड़ सके, एक पॉजिटिव इम्पैक्ट की जो हमारे से वो भी। ठीक है, हम लोग बहुत सिंपल लोग हैं, दैट कि आई एम असिस्टेंट प्रोफेसर वर्किंग है, इट्स वेरी सिंपल लाइफ, इट्स नॉट लाइक आई एम स्टैंडिंग समवेयर एल्स, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो एक सिंपल असिस्टेंट प्रोफेसर भी अगर कुछ बच्चों की लाइफ में एक छोटा सा इम्पैक्ट छोड़ के जा रहा है, तो इट्स अ ग्रेट थिंग, आई थिंक। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। सो सिमरन दी, मे बी लाइक थोड़ा सा हम पीएचडी के बारे में, am I audible right now? वॉइस वाज अभी ठीक है। एक्चुअली माय डॉग इज आल्सो बार्किंग, आई डोंट नो व्हाई इट इज बार्किंग, आई थिंक उनको भी थोड़ा रिलीजियस कुछ आई डोंट नो। ओके, ठीक है। सो जोक्स अपार्ट, सो हम आज लाइक टुडे वी हैव डिस्कस्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स इन वेरी डेप्थ। सो नाउ थोड़ा सा पीएचडी के बारे में बात कर लेते हैं, इतना जब बात कर ही लिया तो पीएचडी के बारे में बात कर लेते हैं। ऐसे ना, आई हैव डन फ्यू पॉडकास्ट विद पीएचडी स्टूडेंट्स, तो उन्होंने लाइक दिस इज़ वेरी कॉमन कि बहुत ज़्यादा डिमोटिवेशन भी हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं पीएचडी में। सो व्हाट यू डू इन योर डाउन्स? सो आप जब डाउन्स जाता है तब आप क्या करते हो, एंड हाउ डू यू लिफ्ट योरसेल्फ अप? इट इज लाइक, देखो, पीएचडी की जो जर्नी है, वी कैन से इट्स नॉट वेरी स्मूथ। पीएचडी में अप्स एंड डाउन्स चलते रहते हैं कि आपने पेपर्स दिया, वो नहीं आ रहे हैं, उसके रिस्पॉन्स नहीं आ रहे हैं, या पेपर्स काफी सारे रिजेक्ट हो रहे हैं, या फिर आपके सुपरवाइजर, आपके जो गाइड है, कभी आपके काम से वो भी सेटिस्फाई नहीं हो जाते। कभी कभी ये होता है कि पीएचडी एक बहुत लॉन्ग प्रोसेस है, तो उसमें ये होता है कि फैमिली की चीजें इन बिटवीन आ जाती हैं, कभी फैमिली में हेल्थ इश्यूज आ जाते हैं, या फिर आपकी कुछ पर्सनल चीजें रहती हैं, या ये सारी चीजें आती है ना। तो अब ये होता है कि एक ऐसा सिचुएशन आ जाता है जबकि आपको पीएचडी की भी और बाकी सारी चीजों को साथ में लेके चलना है, तो वो टाइम आप कह सकते हो ना कि बहुत ही लाइक फ्रस्ट्रेटेड सिचुएशन हो जाती है कभी कभी। मतलब इतना ज्यादा मूड स्विंग्स होते हैं कि लाइक मतलब मेरा ये है कि कभी कभी तो एंगर बर्स्ट आउट हो जाता है, और वो ऑब्वियसली फैमिली पे सबसे ज्यादा निकलता है, मम्मी को थोड़ा सा हो जाता है वो, क्योंकि ये होता ही है कि घर वाले अब ये हो गया ना, सुन लो, उसको जितना बोलना है बोलने दो, उसके बाद वो मुझे समझाएंगे कि देखो, अगर ये चीज नेगेटिव हुई है तो देयर इज समथिंग पॉजिटिव, इट विल हैपन, थिंग्स विल गो स्मूथ, हो जाएगा, जस्ट बी पेशेंट एंड काम। और जब मुझे ये लगता है कि नहीं यार, किसी घर वालों को भी नहीं परेशान करना, जैसे अब मम्मी पापा की हेल्थ इश्यूज रहती है, इतनी सारी चीजें होती है, तो ये होता है खुद में ही शांत हो जाओ, अपने आप को सबसे थोड़ा सा कट ऑफ करके रखती हूँ कि चीजों को
हाँ, कि थोड़ा सा आइसोलेट करके रखो, बिकॉज सेल्फ मोटिवेशन इज द बेस्ट थिंग विच यू कैन डू। बिकॉज आप 10 लोगों से जाके ये कहोगे ये प्रॉब्लम है मेरे साथ, ऐसा है या वैसा है, तो वो लोगों की एक मेंटालिटी यार इसको तो हमेशा तकलीफ ही रहती है। बट एक वो चीज जो आपके अंदर होती है ना कि नहीं, अभी ये चीज है, ओके डाउन्स हैं, धीरे धीरे चीजें ठीक हो जाएंगी। और जब हम उस एक फ्रेश स्टार्ट के साथ एक करते हैं ना, कि जब चीजों को फ्रेशली करते हैं तो हमें खुद पे रियलाइज होता है कि यार मैंने यहाँ गलती की थी, अब वो ठीक हो जाएगा। राइट आपको खुद अपनी गलतियां पता चलती हैं, खुद पे चीजें पता चलती हैं। और ये कहते हैं ना कि पीएचडी में आपके पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कि पेशेंस है तो आप काम कर सकते हो। क्योंकि आपको काफी सारे पॉइंट्स ऐसे होंगे जिस टाइम पे आपको पता है कि आप सही हो, फिर भी आपको गलत बोला जाएगा, लेकिन उससे एग्रेसिव होने की या चीजों को ये करने की जरूरत नहीं है। एग्रेशन आता है लेकिन थोड़ा सा चीजों पे, गुस्से पे कंट्रोल करना चाहिए। मैं ये बोल रही हूँ, जो सुनेंगे वो यही कहेंगे कि खुद का तो गुस्सा कंट्रोल होता नहीं है लेकिन या आई कैन अंडरस्टैंड सिचुएशन situation sometimes go worst, but before expressing anything or anything, PhD ये जो journey है, it's a very wonderful journey. I can say it's a wonderful journey because you explore a lot. Okay. So during this journey you meet a lot of people and you explore a lot. But वही है कि वो patience, वो calmness के साथ, और एक ये भी कह सकते हैं कि आपकी लाइफ में XYZ चीजें रहेंगी, लेकिन पीएचडी की चीजों को हम साइड वाइज नहीं करके चल सकते। सबको साथ में थोड़ा लेकर चलना पड़ेगा, कि थोड़ा थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। क्योंकि अगर देखो, आप ये भी नहीं कर सकते हो, जो हम लोगों की प्रेजेंट सिचुएशन, हम ये भी नहीं कह सकते कि हम फुल्ली पीएचडी पे फोकस कर ले और बाकी चीजों को असाइड कर दें। बट पीएचडी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है आपके लिए कि आपको मैनेज करना आना चाहिए, कि क्या फैमिली का टाइम है, क्या रिसर्च का टाइम है, क्या आपको अपनी जॉब को देना है या क्या है। तो आप सब चीजों को साथ में थोड़ा थोड़ा लेके चलोगे ना। जैसे ये कि मेरे लिए पीएचडी के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, उसकी एक लिस्ट बना लो कि मुझे ड्यूरिंग दिस पीएचडी आई नीड दीज थिंग्स। तो वो आपकी टू डू लिस्ट आपको कहीं ना कहीं हेल्प करेगी। अपने काम को थोड़ा सा डिवाइड करके रखो, मतलब जिनके साथ हो उनके साथ एक अच्छा कनेक्शन बना के रखो, कि उनके काम में आप उनको हेल्प कर रहे हो, वो आपको हेल्प कर रहे हैं। तो देखो, इस स्टेज पे ये होगा कि आप एक दूसरे से ग्रो करोगे, एक दूसरे को हेल्प करोगे, तो उसका भी काम आसान हो जाएगा और आपका भी। हम लोग ये सोचते हैं ना कि हमारी अकेले की जर्नी है, हम कर ले, हमें किसी की जरूरत नहीं है। बट लाइफ में हर स्टेज पे आपको किसी न किसी की जरूरत तो होती है, वेदर इट्स योर लाइफ पार्टनर और योर फ्रेंड्स और एनीवन, इट इज देयर। बट वही है कि सेम अंडरस्टैंडिंग आपको दोनों तरफ से मिलनी चाहिए। राइट तो राइट चीजें बिल्कुल 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 बिल्कुल। सो आई थिंक सिमरन दी, लाइक वी हैव डिस्कस्ड अ लॉट, ठीक है। आई थिंक इट्स टाइम कि हम थोड़ा अपने डिस्कशन को थोड़ा सा, दो मन तो नहीं कर रहा, बट मतलब बात करने का भी मन है अभी भी, बट टाइम कंस्ट्रेंट है, लाइक आपका भी टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, आई नो दैट। सो हम थोड़ा सा इसको अभी क्लोजर पे लाएंगे, बट उसके पहले आई वुड लाइक टू थैंक यू फॉर योर टाइम। एंड अगर कभी भी लगे कि हाँ देर इज़ समथिंग यू कैन स्पीक अबाउट, आई विल श्योरली इन्वाइट यू अगेन। सो आई रिक्वेस्ट यू प्लीज़ कम, अगर बाद में कभी मौका में, मतलब बाद में कभी हमें लगे कि यू कैन कम। एंड अगर आपको भी कुछ शेयर करना हो, देन यू आर मोर देन इन्वाइटेड, लाइक यू आर वेरी वेरी मच इन्वाइटेड टू दिस, ठीक है। आपको कभी लगे कि ओके आई कैन शेयर दिस, तो यू कैन जस्ट टेल मी, सौविक आई नीड टू शेयर दिस, आई विल श्योरली लाइक आस्क यू फॉर अनदर पॉडकास्ट। तो जाते जाते द फाइनल थिंग इज, व्हाट विल बी योर फाइनल मैसेज टू एवरीवन, for all those who are pursuing B.Pharm, M.Pharm और PhD, so for all the students around, आपका क्या ultimate क्या message रहेगा उनके लिए? I would like to say to each and everyone, whosoever, whichever field you are, whether pharma or any XYZ field, I would say only this, कि whatever opportunities God gave you, what your family gave you, just enjoy that ride, enjoy that journey, because in life you get so many ups and downs, but whatever you are, you need to concentrate. देखो, जब क्लास 12 तक होता है तो आपको पेरेंट्स होते हैं हर एक स्टेप पे गाइड करने के लिए, बट जब आप 12th से बाहर निकलते हो, जब एक दुनिया, आप एक अलग वर्ल्ड में एंटर कर चुके हो, तो अब आपको अपनी चीजों को, अपनी गुड पॉइंट्स को उठा के चलना पड़ेगा। सबसे ऊपर अपने ऊपर भरोसा रखो कि जो आप कर रहे हो वो कितना अच्छा है। अगर आप उन चीजों को लेकर चलोगे तो यू विल आउटशाइन। अब ये आप दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट हो कि मुझे कोई कहेगा इज समथिंग एल्स, कहेगा इज समथिंग एल्स। आप खुद को एक्सप्लोर करो, आप लोगों को अप्रोच करो, जितना अप्रोच करोगे, जितना बात करोगे, जितना गेन करने की कोशिश करोगे, आप जिससे भी मिल रहे हो, जैसे अभी इस 1 घंटे के सेशन में हो सकता है आई लर्न अ लॉट फ्रॉम यू, यू मस्ट हैव लर्न अ लॉट फ्रॉम मी, तो वही चीजें होती है, बट आई हैव लर्न अ लॉट, या प्लीज। हाँ,
तो यही चीज है ना कि आप उस चीजों को उस एक घंटे को भी अगर आप पॉजिटिव लेके चलो ना, कि यार नहीं मैंने इतना कुछ सुना, अगर 1% भी अपनी लाइफ के अंदर लेकर आओगे ना, डेफिनेटली यार, अगर आप हर दिन कुछ ना कुछ सीखोगे और हर दिन एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ चलोगे, तो यू विल आउटशाइन फॉर श्योर। आई हैव सीन, मैंने अपने स्टूडेंट्स को जिनको गाइड किया है, देखा है, उनको थोड़ा सा भी दे पाई हूँ, तो मैंने देखा है कि उन्होंने बहुत ग्रो किया है। और जो भी आज मेरे टीचर्स मुझे अगर एनकरेज करते रहे, तो कहते हैं ना कि एक जैसे फ्लावर बड होता है कि वो उसको कितना टाइम लगता है कि वो ग्रो करे, ब्लूम करे, लेकिन जब वो ब्लूम करता है तो वो कितनी खुशी देता है जिसने उस पेड़ को उगाया होता है ना। तो वही चीज कह सकते हैं कि उसी तरीके से जब आप अपनी चीजों को डे बाय डे ग्रो करते देखोगे, तो जब आपकी सीवी में है जो धीरे धीरे बढ़ते जाएगी ना, वो एक एक वर्ड्स जो ऐड होते जाते हैं, दैट विल मेक यू समथिंग एल्स। एब्सोल्युटली आई तो थिंक एग्जैक्टली दैट इज इस पॉडकास्ट में इतने सारे गुड मोमेंट्स थे, ठीक है, बट आई डोंट नो लाइक हाउ like this entire podcast should be taken in a very like you know positive way. I do believe आज आपने बहुत कुछ दिया हमें. I like podcast मतलब I think काफ़ी ज़्यादा एंड पे आ चुका है. Like I think it's time to say goodbye. But अभी भी मेरे दिमाग में वो सब बातें घूम रहे हैं, like जो whatever you have said. ठीक है, so thanks a lot सिमरन दी for this entire amazing 1 hour and almost 1 hour हो चुका है, 57 it is. I'm really very thankful to you. I'm really very thankful to you that you gave me this opportunity. That I never knew that the podcasts are such. मतलब देखा है बहुत लोगों का podcast, but I'm glad that I'm also a part of this podcast. And Even surely will be. प्लीज बता दो आज इतना ज्यादा बात करने का है. ओके प्लीज बोल लो देन आई विल. I'm saying this I'll be glad that I could be a part of any of your sessions again in future also, and you are very instrumental and you organize these kind of things, so be in touch. And sure absolutely. And I wish you all the best for your journey. Thank you and so hopefully much. you grow a lot, you shine a lot and leave impact on the people of others. You are really doing a great job. Thank you so much, means a lot. क्योंकि सेम है यार, PhD की तरह ये भी, इसमें भी बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स होते हैं. कभी कभी मन करता है नहीं करना है, सब कुछ नहीं करना, बट देन व्हेन आई ट्राई कि नहीं सोसाइटी में कुछ जा रहा है, देन आई फील रियली गुड. एंड सेम हेयर दी, लाइक मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन एज वेल एज बेस्ट ऑफ लक टू यू. आप PhD जल्दी से खत्म करो एंड आपके नाम के आगे दैट डॉक्टर प्रीफिक्स दैट जल्दी से दिख जानी चाहिए. सो ऑल द बेस्ट टू यू सिमरन दी. So thanks a lot Simran di. I think we should say bye this time. So bye bye and take care. Thanks a lot Simran di. Bye bye.